welcome back to my channel. This side Neelam once again with you. I hope you all are doing great and safe at your homes. As you've already seen the thumbnail, so you already have an idea what is the topic I'm going to talk about in this video. But before that, if you're new here, please subscribe to my channel, hit the bell icon so that you get all the updates whenever I post any video. And yes, don't forget to like and share so that I can grow, my channel can grow with all of your love and support. So in this video today we are going to talk about perks of becoming a cabin crew. So there are a lot of perks, there are a lot of advantages once you become a cabin crew. There are many people who want to become cabin crew, who want to become air hostess. So we are going to help them, all of them, by sharing a lot of details which I am going to share you today in this video so that all of them can fulfill their dream of becoming air hostess, becoming cabin crew. Okay, so let's get started. You know what? There are a lot of perks becoming a cabin crew. There are a lot of advantages to it because you get really great good deal once you become cabin crew, once you become air hostess, because you get a really great good lifestyle, you get out of luggage lifestyle, you get visiting a lot of hotel rooms lifestyle, you get a lot of visiting a lot of new places lifestyle. All these are a part of cabin crew life and you should embrace it, क्योंकि जब आपको इतने प्लस पॉइंट मिल रहा है, आपकी जॉब है, डेफिनेटली आप इतना काम कर रहे हो और ये एक ऐसी जॉब है ना कि बहुत मतलब कि बहुत टेम्प्ट करती है, बहुत अच्छा है, आप कर रहे हो काम और उसके साथ साथ आपको इतने सारे बेनिफिट्स मिल रहे हैं कि आपको नए नए जगहों पे जाके घूमने का मौका मिल रहा है, आप लोगों से मिल रहे हो, इतने सारे नए नए पैसेंजर से मिल रहे हो और जो इन फ्लाइट एक्सपीरियंस होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब आप काम करने लगते हो तो जब आप फ्लाई करते हो तो फ्लाइट में जब इतने सारे पैसेंजर होते हैं ना तो उनके बीच में भी कभी कभी बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स भी होते हैं, कभी कभी ख़राब टाइम भी होता है, लेकिन बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स होते हैं। तो आप जो है ना वो आपको जो ज़्यादा याद आएगा, जो आप ज़्यादा रिमेंबर करोगे ना वो आपके अच्छे टाइम्स ही होते हैं। आपके इतने सारे जो कलीग्स होते हैं उनके बीच में आप रहते हो तो आप इन्जॉय करते हो, ये जॉब आप बहुत इन्जॉय करते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब हम बात करेंगे वो 3 टिप्स के बारे में जो आपको हेल्प करेगी ताकि आप अपना cabin crew जो इंटरव्यू है वो क्लियर कर पाओ, अपना ये चाइल्डहुड ड्रीम है जो वो आप अपना फुलफिल कर पाओ। Number 1, personalize your CV. Make sure that your CV is always up to date with the latest information of yours. Don't try to include each and everything about your life. Just keep it short, simple, cut to cut. Okay? And don't make your CV harsh for other people to read it. Always make it easy, simple, and short. Okay? And your CV shouldn't be taking 3 to 5 pages, because many times it happens that what we do, we are making CV and we are mentioning each and everything about a life, about us, so that it becomes of 3 pages, 4 pages, 5 pages. Don't do that. ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि 1 पेज का, 2 पेज का, उससे ज़्यादा ट्राई करो कि उससे ज़्यादा लंबा पेज का सीवी ना हो, क्योंकि फिर क्या होता है, आप जा रहे हो तो आपका सीवी देख के वही एक मन ना इतना डाउन हो जाता है इंटरव्यूअर का कि इतनी ज़्यादा वो लिखी है, क्योंकि हमें कथा तो लिखनी नहीं है उसमें, सिर्फ आपकी क्वालिटीज़ के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में और आपने क्या क्या, आपके पास क्या डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है या आपका कोई एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास कोई पास्ट वर्किंग एक्सपीरियंस है वो मेंशन करना है, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं मेंशन करना है उसमें। ठीक है। Tip number 2, maintain professionalism. Now this thing I keep saying in my all videos because this is really important, that you should have professional etiquette, positive attitude, all these things you should have. ये सारी चीज़ें ना कूट कूट के भरी होनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है आप जब जॉब करते हो किसी भी फील्ड में, सिर्फ एविएशन में ही बात मैं नहीं करती हूँ। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, प्रोफेशनल होने का मतलब क्या है, the way you talk, it should be professional, the way you carry yourself, it should be professional, everything should be professional, because तब आप एक बिहेव करते हो, जब आप होते हो ना एक प्रोफेशनल और वेल बिहेव्ड मैनर में अपने आप को प्रेजेंट करते हो, तो सामने वाला जो होता है ना वो अपने आप ही एक बहुत अच्छी इमेज जाती है, अट्रैक्शन जाता है कि कितना अच्छा है ना, मतलब अरे देखो इसने ऐसे बात किया, कितने अच्छे से ये बात करता है, कितने अच्छे से ट्रीट कर रहा है लोगों को। ये सारी चीज़ें ना एक अलग इफेक्ट देती हैं और एक अच्छा इमेज क्रिएट करती हैं आपका सामने वाले पर्सन के माइंड में।
तो प्रोफेशनलिज्म कैसे मेंटेन करना है कि हमेशा वेल ग्रूम्ड रहो, हमेशा प्रोफेशनल बिहेव करो, कैजुअल मत रहो जब भी आपको आप लोगों के बीच में हो। इतनी मतलब जब भी आप अपनी जॉब फील्ड में हो तो आप ज़्यादा कैजुअल एटीट्यूड मत रखो, हमेशा दूसरों को अच्छे से ट्रीट करो। और आपकी ग्रूमिंग होनी चाहिए कि आपने अच्छे से हेयर बनाए हुए हैं, और अगर बॉयज़ हैं तो उनके लिए शेविंग की है, अच्छे से बाल ट्रिम होने चाहिए, क्योंकि उसमें भी आप जाके देख सकते हो चीज़ें कि एक ग्रूमिंग में भी कई चीज़ें का क्राइटेरिया होता है कि आपका जो हेयर कट है वो कौन सा होना चाहिए। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें भी हैं कि इसमें कई बार होता है कि आप हर तरह का कट नहीं कर सकते। कुछ कुछ कट्स हैं, हेयर कट हैं जो मेंशन है। आप हेयर कलर नहीं होता आपका इसमें, ये सारी चीज़ें, हाँ, इस सब में से अगर आपको चाहिए तो ये इसमें नहीं हो सकता। बिकॉज़ कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं वो आपको फॉलो करने होते हैं। जैसे कि जब आप क्रू बनते हो तो आपको कुछ स्टड्स होते हैं, जैसे लड़कियों के लिए जैसे स्टड्स जो हम कानों में पहनते हैं, वो या तो जैसे पर्ल के होने चाहिए, या तो वो जो स्टोन वाले स्टड्स होते हैं वो होते हैं। कोई भी रिलीजियस थ्रेड आप नहीं पहन सकते हो। और आप जैसे कलर्ड नेल पेंट नहीं लगा सकते हो। कुछ डिसेंट नेल पेंट जो होती है वो कंपनी के थ्रू ही अपनी अपनी ग्रूमिंग गाइडलाइंस होती है, वो ही आपको फॉलो करनी होती है। और जैसे होता है ना कि मेहंदी वेहंदी होता है, कई बार हम फंक्शन में लगाना होता है तो मेहंदी भी अलाउड नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हैं। आपका बाल है लड़कियों के लिए अगर जैसे है तो आप जूड़ा बनाओ। जूड़ा सबसे अच्छा वे होता है। मतलब हर एयरलाइन मेजोरिटी देखो तो लोग जूड़ा ही प्रेफर करते हैं, बन प्रेफर करते हैं। लड़कों के लिए हो गया कि हमेशा हमें उनको डेली शेव करना पड़ता है जब भी काम में जाना होता है, वो चीज़ रहती है। उनके कुछ हेयर कट्स हैं कि कुछ कुछ ही पैटर्न है जो अलाउड है, तो वो ही सब कर सकते हैं। तो ग्रूमिंग हो गया आपका। और जब आप बात कर रहे हो आपकी कम्युनिकेशन, वो इम्पॉर्टेंट है कि कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो हमेशा ट्राई करो आप अपने बातों के साथ, आप जैसे बात कर रहे हो, जैसे उठ रहे हो, जैसे बैठ रहे हो, जैसे सामने वाले पर्सन को ट्रीट कर रहे हो, आप जैसे अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो, जैसे आपने ग्रूमिंग की है, वो सब में आपका एक प्रोफेशनल सब कुछ होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एक प्रोफेशनल तरीके से ही होनी चाहिए। टिप नंबर 3, डू नॉट गिव अप। ऑलवेज कीप ट्राइंग, डू नॉट अबैंडन योर गोल, ओके। नेवर स्टॉप वर्किंग फॉर योर गोल। कई बार क्या होता है कि आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपने XYZ एयरलाइन में इंटरव्यू दिया, आपको क्रू बनना है, आपने इसमें इंटरव्यू दिया, एक में दिया, फिर एक में दिया, एक में दिया, नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कई बार होता है कि चीज़ें एक बार में नहीं हो जाती। जैसे मेरे नोन में ही, चलो एक था एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ ताकि आप थोड़ा मोटिवेट हो सको। मेरे नोन में एक लड़की थी, उसे क्रू बनना था और वो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी। एंड यू वोंट बिलीव, उसने 12 to 13 टाइम्स इंटरव्यू दिए और वो हर जगह रिजेक्ट हुई। फिर भी उसने ट्राई करना बंद नहीं किया, वो देती रही। डिमोटिवेट हो रही थी कभी कभी, लेकिन फिर से अपने आप को मोटिवेट कर रही थी। और उसका जो सिलेक्शन आया ना वो 15 टाइम पे, मतलब 12-13 बार इंटरव्यू देने के बाद हुआ। तो उसने कभी ट्राई नहीं किया। वो इतनी जगह पे कराओ, जब उसने किया ना तो वो सिलेक्ट हुई। तो वो बहुत वैल्यू करती है अपनी इस चीज़ को कि हाँ उसको, क्योंकि इतनी मुश्किल से इतनी बार इंटरव्यू, इतने सारे रिजेक्शन के बाद मिला, लेकिन उसे मिला क्योंकि वो, क्यों मिला, क्योंकि वो ट्राई करती रही थी। तो कई बार होता है ना कि हम जाते हैं, हमें बनना है कि हम चलो इंटरव्यू दे के आते हैं, तो हाँ एट द मोमेंट बुरा लगता है, हाँ यार कि नहीं हुआ, अब क्या करूँ, ट्राई करूँ कि नहीं करूँ, अब दोबारा करने का मन नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट करो। हमेशा अपने आप को ऐसा स्ट्रॉन्ग बना के रखो कि आप वो चीज़ से डिमोटिवेट मत हो कभी भी। आपको ये है कि चलो अभी नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करती हूँ, नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टाइम भी नहीं होता है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कभी तो होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, कब पांचवी बार तो होगा, लेकिन होगा। तो कभी भी ट्राई करना बंद मत करो, कभी भी अपने अपने आप पे, अपने ऊपर गिव अप मत करो, अपने ड्रीम्स पे गिव अप मत करो, अपने गोल्स पे गिव अप मत करो। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करते रहो कि कुछ भी, कोई भी चैलेंजेस आएंगे आप फेस कर लोगे, हमेशा आप पास कर लोगे, आज नहीं तो कल कर लोगे। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना, फिर आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। क्योंकि जो हमारे लिए क्या होता है ना, जो भी चीयर लीडर जो कहते हैं ना अपने लिए, कि आपको जो सपोर्ट कर रहा है, वो आपके साथ आपके आसपास के लोग होते हैं, आपके पेरेंट्स में, आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड्स में, वो सारे होते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा चीयर लीडर होता है ना, वो हम खुद होते हैं हमारे लिए। तो अपने आप को हमेशा
स्ट्रॉन्ग करना है, इतना हमेशा अपने आप को एक वो पुश देना है कि चलो अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम, इस बार नहीं तो अगली बार हो ही जाएगा, आप कर ही लोगे। अगर ये थॉट के साथ चलोगे, ये माइंडसेट के साथ चलोगे और इतने स्ट्रांग रहोगे ना यार, तो कुछ हुआ भी ना तो वो आप जब ये थॉट अपने आप दिमाग में ये बात को घर कर लेते हो ना, तो एक बार नहीं भी होता है तो आपको वो चीज़ उतनी फील नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि अगर इधर से नहीं हुआ तो मुझे तो पता है ना कि मैं तो करके ही रहूंगी, मुझे तो करना है, तो मैं आज नहीं 4 अटेम्प्ट के बाद नहीं तो 5 अटेम्प्ट के बाद नहीं तो कर लेती हूँ। कई बार होता है कुछ लोगों का, देखो तो एक बार में हो जाता है, कुछ लोगों का 2-3 बार में भी होता है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट और एक बहुत, आपकी लाइफ में अगर आप ये चीज़ फॉलो करते हो तो आप हमेशा ग्रो करोगे, हमेशा सक्सेस ही आएगी आपके हाथ में, और ये चीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो ये सारे 3 टिप थे जो आपको हेल्प करेंगे आपको कैबिन क्रू बनने में, आपका जो ड्रीम जॉब है आपको फुलफिल करने में। ऐसा नहीं कि ये बात सिर्फ कैबिन क्रू की ही नहीं है, ये सारी चीज़ें होती हैं जो आप किसी भी फील्ड में, मतलब आपके डेली लाइफ में ये चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। तो ये हमारे 3 टिप्स थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस information वॉज हेल्पफुल टू यू। Wish you all the best. If any of you going for your interview, definitely I know you're going to rock it. I'm rooting for you from here. And yes, again, don't forget to like, share, and subscribe my channel. Thank you. Bye bye.